گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ خدا کا کلام پڑھیں گے، مکاشفہ کی کتاب 21 باب۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت تک حوالہ نکال لیجئے، ہم پڑھیں گے۔ پھر میں نے، یہ یوحنا رسول لکھ رہا ہے، ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ ہیلیلویا! کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا۔ پورا شہر دلہن کی طرح آراستہ تھا، جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ اتنا خوبصورت تھا۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ That time is also coming۔ چوتھی آیت، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اگر آج تو آنسو بہا رہا ہے اور تو مسیح میں ہے، a time is soon coming۔ خداوند تیرے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو، دیٹ از دی کنڈیشن، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی، not anybody else، ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں، فیئرفلز، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا،
یہ دوسری موت ہے۔ 21 باب اور 22 باب بڑے خوبصورت ابواب ہیں جن میں ایمانداروں کی مستقل ابدی رہائش گاہ کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے 20 باب وہاں پر یہ ہولناک چیپٹر ہے، یہ بیک گراؤنڈ میں ہے، 21 باب کے پس منظر میں ہے۔ 20 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس اور حیوان اور جھوٹا نبی اور موت، عالم ارواح، سب غیر نجات یافتہ لوگ آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے۔ دیٹس دی اینڈ آف ایول، آف سن، ساری برائی، اس کا خاتمہ۔ چیپٹر 20 اور بائبل مقدس بتاتی ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں۔ دنیا اور اس کی خواہشیں ہمیشہ تک قائم نہیں رہیں گی۔ یو کین ریڈ ان چیپٹر 20 کہ برائی کا انجام کیا ہے۔ برائی کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ اس لیے آج برائی سے نکلا، کیونکہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، ختم ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اس کے لیے چیپٹر 21، اس کے لیے 21واں باب مکاشفہ کی کتاب، جس کی بابت ہم پڑھتے ہیں نیا آسمان، نئی زمین، نیا یروشلم، خوبصورت ترین شہر جس کا بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے لیے جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ آج صبح نئے سال پر 5ویں آیت پر ہم غور کریں گے، صرف جہاں لکھا ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ خداوند قادر مطلق ہے۔ اس نے کہا، خدا نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ بنا کر پھر کہا، نیا آسمان دکھایا، نئی زمین دکھائی، نیا یروشلم دکھایا، مقدسوں کی تسلی دکھائی۔ یہ ہمارا مستقبل، ہم اس انجام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، جہاں پر 20 باب بھی آ رہا ہے اور 21 اور 22 باب مکاشفہ کی کتاب یہ بھی اپروچ کر رہا ہے۔ مقدسوں کے لیے خوشی کی خبر، تسلی نئے سال کے اوپر۔ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے، رائٹ اٹ ڈاؤن، کیونکہ یہ باتیں سچ، اٹ مینز فیتھفل، یہ باتیں ان میں وفا پائی جاتی ہے، اور برحق، ٹرو، یہ سچی ہیں۔ تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ اور ایک بات پر غور کریں، یہ جو لکھا ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، لفظ جو نیا ہے، گریک ورڈز کائنوس،
اس زبان میں نئے کے لیے there are two words. ایک نئے کے لیے لفظ ہے نیوس. اس کا مطلب ہے نیا، لیکن ٹائم کے ریفرنس سے، عمر کے ریفرنس سے، کیلنڈر کے ریفرنس سے. جیسے 2017 آج نیا سال، یہ ٹائم کے مطابق آتا ہے، لیکن نیوس اس آیت میں نہیں لکھا ہوا. اس آیت میں لفظ ہے کائنوس، نئے کے لیے، جس کا مطلب ہے نیو ان کوالٹی، معیار میں، کوالٹی میں نئی چیز، فریش، ایسی چیز جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، جسے کبھی استعمال نہ کیا ہو، خوبصورت، جس میں زوال نہیں، کامل، جلالی، پیور، کوالٹی میں نئی چیز. میں خداوند جو تخت پر بیٹھا ہوا ہوں، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. کوالٹی میں، نیچر میں، کیریکٹر میں، ایسنس میں وہ چیز بالکل نئی ہو جاتی ہے. میرے عزیزو، آج نئے سال پر ہمارے لیے یہ میسج کہ اگر ہمارے اندر پرانی چیزیں ہیں، اگر ہم بگڑ گئے ہیں، تو ہمارا خداوند قادر مطلق، اس کے اندر یہ قدرت اور عظمت ہے، ناممکنات کا خدا ہے. وہ ہمارے بگاڑ کو سنوار سکتا ہے اور پرانی چیزوں کو نیا بنا سکتا ہے اور گناہ گاروں کو مقدسین میں تبدیل کر سکتا ہے. اور جہاں کچھ بھی نہیں، اپنے کلام کی قدرت سے سب کچھ مہیا کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. یہ خدا کی نیچر ہے جس پر آج صبح میں زور دینا چاہتا ہوں. اس کی نیچر ہے بگڑی ہوئی چیزوں کو سنوار دینا. میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. خدا اچھا ہے، خدا محبت ہے، خدا خالق ہے، اور اس کی شادمانی چیزوں کو خوبصورت بنانے میں ہے. اس کی شادمانی انسان کو نجات دینے میں ہے، انسان کے گناہ معاف کرنے میں ہے. He likes it. He loves it. یہ اس کی نیچر، یہ اس کا مزاج، یہ اس کی فطرت ہے. وہ تباہ کرنے والا نہیں ہے. God is not a destroyer. He is a maker. بنانے والا، سنوارنے والا. What a God! What a loving God we have! ایک ہے جو تباہ کرنے والا ہے. اس کی بابت مسیح نے فرمایا کہ چور نہیں آتا مگر چرانے، ایک ہی کام کے لیے، ٹو اسٹیل، اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. دیٹ از جیسس. چور ہے ہمارا دشمن، خدا کا دشمن. اس کی نیچر ڈسٹرائے کرنا، اس کی نیچر تباہ کرنا، خوبصورت نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دینا، ان کا ایمان چوری کر لینا، ان سے زندگی لے لینا، انہیں شہوانی دنیا میں گھسیڑ دینا، گناہوں کی دلدل میں پش کر دینا، الیور کرنا، آزمائش میں پھنسانا.
उनको ले लेना और जहां पर उनकी जिंदगियां धंस जाती और बर्बाद हो जाती हैं। मैंने कई नौजवानों को देखा, they took a wrong step in life, गलत स्टेप ले लिया, बहक गए, इब्लीस के झूठ पर यकीन कर लिया और ख्वाब देखने लगे। लेकिन बहुत जल्द उनको इल्म हो गया कि आई मेड अ मिस्टेक, और मैंने गलत फैसला कर लिया। शायद बाजों के लिए इट वॉज टू लेट, लेकिन तेरे लिए इट इज नॉट टू लेट। अगर आज तू इस जगह पर बैठा हुआ है, बैठी हुई है, और इब्लीस तुझे शहवत की दुनिया में ले जा रहा है, से नो ऑन द न्यू ईयर एंड से यस टू जीसस क्राइस्ट हु इज अ मेकर। वो बनाने वाला है, तबाह करने वाला। हमारा दुश्मन जिसकी बाबत एक और जगह पर लिखा हुआ है, वो झूठा है, वो झूठ का बाप है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है। एक फ्री ट्रांसलेशन है जो ये कहती है, इसका तर्जुमा किया उन्होंने कि जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, he doesn't listen to anybody। तर्जुमा ये था कि जब इब्लीस झूठ बोलता है, he speaks his mother language, mother tongue। झूठ उसकी मादरी जुबान है। फ्लुएंटली, ईज के साथ, कन्विक्शन पावर के साथ इब्लीस झूठ बोलता है, एंड ही नेवर लर्न्स अनदर लैंग्वेज। वो कोई दूसरी जुबान नहीं सीखता, एक ही जुबान, झूठ, जिसमें तबाही, बर्बादी, चोरी, मार डालना, हलाक करना, खौफ पाया जाता है। आज नए साल पर खुदा तेरे साथ कलाम कर रहा है, स्टॉप बिलीविंग द लाइज ऑफ द डेविल। इब्लीस के झूठ, से नो टू देम। एक है जो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हालेलुया। आज इसकी मुनादी कर रहा हूं। एंड व्हाट अ जीसस, खुदा का मुकाशफा, खुदा का तजस्सुम, खुदा को जाहिर करने के लिए यीशु आया। बच्चों को छुआ वो खुश हो गए, बीमारों को छुआ वो शिफा पा गए, गंधम के दाने को लिया वो कलाम की तशबीह बन गया, जन्म के अंधों को छू दिया उनमें नई आंखें आ गई, कौड़ियों को छू दिया वो शिफा पा गए। व्हाट अ गॉड मेकर। मैं बनाने वाला हूं, मैं तबाह करने वाला नहीं। खुदा तेरा खालिक, तेरे अंदर उसकी दिलचस्पी, वो तुझसे मोहब्बत करता है। अगर तेरी जिंदगी के अंदर दाग और धब्बे और बिगाड़ और डिस्ट्रक्शन हैव होप, तेरा खुदा जिसने तुझे खलक किया वो बनाने वाला है। उसकी नेचर, उसकी फितरत यही है कि वो रीशेप करता है और नई चीजें बना देता है और खलक करता है और जिंदगी दे देता है। हालेलुया। आई लव यू जीसस। मसीह एक दिन इबादत खाने में था। गौर करो, वहां पर एक प्यारी बहन थी, अज्जू इब्राहिम की बेटी, ईमानदार, बरगुजीदा, जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाली, बहक गई। लिखा है उसकी बाबत, शैतान ने उसको बांध रखा था। देयर आर मैनी क्रिश्चियंस
آج جو زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن شیطان نے ان کو باندھ رکھا ہے in the hands and clutches of the devil, جو تباہ کرنے والا ہے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کمزور ہوتی گئی اور ایک ایسی سٹیج آ گئی کہ وہ کھبڑی ہو گئی. سوچئے اس بہن کی زندگی پر all the time وہ کھبڑی ہے. لکھا ہے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی. اس کی پلائٹ، اس کی مصیبت، اس پر غور کیجئے. اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیے. چلنا بھی ایسے ہی، سونا بھی ایسے ہی. میں نہیں جانتا how she changed her clothes. کیسے روٹی، کیسے پانی پیتی تھی. پانی پینے کے لیے بھی سیدھا ہونا پڑتا ہے. یہ اس کی زندگی بگڑ گئی. ڈسٹرائر ابلیس تباہ کر دیا. کھبڑی ہو گئی. لیکن she was back in the عبادت خانہ. جا کر پیچھے بیٹھ گئی. یہاں پر زندگی دینے والا موجود تھا. I don't know where she was sitting. کھبڑی عورت. شاید پیچھے لکھا ہے مسیح نے اس کو بلایا. کیا Jesus put her at the spot, exposed her. بلایا. سب دیکھ رہے ہیں اور وہ آ رہی ہے اور چل رہی ہے اور عبادت خانے میں لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ تماشا بنی ہوئی ہے. ایمان رکھنے والے تماشا ہی بنتے ہیں. ایکسپوزڈ ہو گئی ہے. جیسس کرائسٹ کالڈ ہر. اور وہ آ رہی ہے اور سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. I don't know وہ کیا محسوس کر رہی تھی. کمپلیکس، ashamed. Why is he calling me? She is coming. Jesus is calling me. Doesn't matter کون مجھے دیکھ رہا ہے. یسوع مسیح مجھے بلا رہا ہے. I will go. اور وہ سٹیج پر تھا. سب سائلنٹ. یسوع مسیح ہے اور یہ کھبڑی عورت ہے. And all are watching. یسوع مسیح نے دیکھا ابلیس نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا ہے. She has a pain. Health challenges. Personality کھبڑی. جسم کھبڑا. No life. But still she is in God's house. یسوع مسیح نے کہا اے عورت سیدھی ہو جا اور اس پر ہاتھ رکھے. اور نہ جانے کہاں سے پاورز اس کے اندر آ گئی اور وہ عورت سیدھی ہو گئی. This is Jesus. دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. شاید آج یہ تیری زندگی کی تصویر ہے. دنیا کی فکروں اور بوجھ اور گناہوں اور شہوت پرستی اور غرور اور غربت اور کرسس، تاریکی، حیرانگیاں، کویسچنز، انہوں نے تیری شخصیت کو کبڑا کر دیا ہوا ہے اور تو سیدھا نہیں ہو سکتا. یسوع مسیح تجھے آج صبح بلا رہا ہے.
और रूहुल कुद्स की कुदरत से तुझ पर हाथ रखकर तेरे कुबड़ेपन को सीधा करना चाहता है, क्योंकि देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। हालेलुया। उसकी फितरत बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। हमें बनाया, सारी दुनिया को बनाया। हम गिर गए थे और पैदाइश की किताब 3 बाब पढ़िए। पहली दफे इंसान को खौफ का तजर्बा हुआ। आज खौफ आम बात है और कोई शख्स ऐसा नहीं अरबों लोगों में जो ऐसा हो जिसको कभी खौफ ना आया हो। खौफ हमारा मुश्तरका तजर्बा है। हम सब खौफ को जानते हैं। खौफ हमें मफलूज करता है। खौफ हमारा दुश्मन है। इसलिए मसीह ने, खुदा ने बार बार कहा, खौफ ना कर, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं यीशु मसीह हूं। खौफ तेरा दुश्मन है। जमीन लानती हो गई। पहले आदम और हवा, बड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ, लाइक वन पर्सन। जब गिर गए, गुनाह आ गया बीच में, तो खुदा ने आदम से पूछा, तुझे किसने बताया? तू क्यों डरा? क्यों छिपा हुआ है? क्या हुआ तेरे साथ? क्या तूने वो फल खाया? क्या तूने नाफरमानी की? क्या तूने बगावत की? गुनाह हमेशा यही कुछ करता है। जदों बंदा उस रडार च आया हुए ना, रडार समझते हैं ना, उन हदूद में, उदों समझता भले 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 मुझे तो कायनात ही मिल गई है। ओनू कोई मोड़े कहंदा परे हट जाओ। और रडार दे हदूद दे विच हुंदा है। अगर ये कोई लड़की है, पांव चौं के फेरियां उथे ही, इधर उधर नहीं जाएगा। वो हुक हो चुका है, वो फंस चुका है, निकल नहीं सकता। और अगर वो लड़की तेरी बीवी नहीं है तो तू शहवत की दुनिया में, इब्लीस तुझे घुसेट रहा है और तुझे बर्बाद करके रख देगा। स्टॉप गोइंग देयर, डोंट डू इट। तू तबाह हो जाएगा। किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है, तू डरा हुआ है, तू छिपा हुआ है? कहंदा जी मैंने गुनाह किया, आई एम सॉरी लॉर्ड। क्या उसने ये कहा? नो नो, somebody else, my wife, she did it। आज भी ऐसा ही हो रहा है। My wife did it, my friends did it, मेरे रिश्तेदारों ने ये किया है, मेरे हालात ऐसे थे, मेरा मामला इस तरह का था। What about you, जिसने फैसला किया तेरे दिल में? Look at yourself। अपने आप को पकड़, अपने आप को थाम। कहता my wife did it, जिसको तूने मुझे दिया है तेरी सी। चंगिया वेलियां च खुदा याद ही नहीं। ओ माई वाइफ, हुण जिसे तूने मुझे दिया, शी डिड इट। खुदा उधर हो गया, उधर भी यही चानन चढ़िया सी। इट्स नॉट मी, इट्स द स्नेक, इट्स द डेविल। व्हाट अबाउट यू? तेरा अपना फैसला। तू खुद कहां है? तेरी जिम्मेदारी कहां है? हम बिगड़ गए, लेकिन
खुदा सब चीजों को नया बनाने वाला है। हमें नया करने के लिए वो जमीन पर खुद आ गया, मुजस्सम हो गया, आसमान छोड़ दिया। हमारा कफारा देने के लिए, हमें इस बिगाड़ में से निकालने के लिए यीशु मसीह खुद जमीन पर आ गया। सजा हमारे ऊपर थी, अदालत हमारे ऊपर थी, लेकिन उसने खुद, एक जगह पर लिखा हुआ है, उसका चेहरा तमाम बनी नौ इंसान से ज्यादा बिगड़ गया था। खुद बिगड़ गया सलीब पर। हम उसकी तरफ देखें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं, वो खुद बदसूरत हो गया, क्योंकि हमारे गुनाह, हमारी लानतें, हमारे सब कुछ यीशु नासरी ने खुद उठा लिया, ताकि उसकी खूबसूरती, उसकी मेकिंग, उसकी नेचर, उसकी जिंदगी, उसकी रास्तबाजी रूहुल कुद्स की कुदरत से मुझ में ट्रांसफर हो जाए। दिस इज जीसस बनाने के लिए जमीन पर आ गया है। इसलिए लिखा हुआ है, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? जोर से बोलो, वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। और बाइबल मुकद्दस कहती है, दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत, हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है, डिके, ज़वाल पजीर, खत्म होती जा रही है। हम बूढ़े हो रहे हैं। एक वक्त था असी भी आकड़ आकड़ के टुरने होने से, ये बुढ़ापा दूजिया ते ही आना, साढ़े थे नहीं है। अब पता चल गया, नहीं नहीं, हम पर भी आना है। हमारी पुरानी इंसानियत जायल होती जाती है, लेकिन हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज एवरी डे नई बनती जा रही है। ये खुदा का काम, ईमानदारों को रोज बरोज नया बनाते जाना। क्या तू नया बन रहा है कि सिर्फ डेट ही चेंज की थी? कई तो अजय भी टोबा खानगे, लिखणगे एक 2016, फिर कहेंगे ओह, डिड यू ओनली चेंज द डेट और डिड यू आस्क जीसस टू चेंज योर लाइफ? और जो ईमानदार है, दैट इज अ डेली असाइनमेंट। पास्टर मॉरिस, एक असाइनमेंट्स तो आप करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, एक असाइनमेंट खुदा का भी है, एंड दैट्स रोज बरोज हमारी बातनी इंसानियत, अंदर की शख्सियत रोज बरोज नई होती जाती है। तितली, यहां एक बच्ची है, मैं उसको तितली कहता हूं, वो हंस रही है। किस किस ने तितली देखी हुई है? Beautiful birds, so many attractive colors. इसको तितली बनने से पहले इसकी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, फीमेल बटरफ्लाई lays egg on any plant or branch or a tree. First stage, an egg, एक अंडा। वो अंडा ही जिस शाख पर, जिस प्लांट पर होता है, खुराक खानी शुरू कर देता है और बढ़ना शुरू कर देता है। उसकी दूसरी स्टेज आ जाती है और वो है कैटरपिलर।
या लार्वा साइंस च पढ़िया सजे ये लंबा जिहा कीड़ा बन जाता है ते कोझा जिहा लगता है कुछ भी नहीं हुंदा उहदे च ऐ गंदा जिहा रुलिया कोई नहीं जानता इसके अंदर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन रही है कैटरपिलर लार्वा nobody minds nobody looks एक तीसरी स्टेज आ जाती है जिसको इंग्लिश में प्यूपा कहते हैं हाँ प्यूपा छोटी जी बच्ची कहती प्यूपा मैं कहते ही ना कह दे पापा ये पादरी आरफ दी धी जे जोरदार तालियां मसीह यीशु के जलाल के लिए हालेलुया तीसरी स्टेज प्यूपा ये फिर हरी जी कोई चीज बन जाती है ऐ जिवें कोई डड्डू जिहा हुंदा है ये थोड़ी देर के लिए रहती है ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा लेकिन बिग चेंज इज टेकिंग प्लेस इनसाइड वहां पर तितली की आंखें बन रही हैं टांगें बन रही हैं पर बन रहे हैं रंग चढ़ रहे हैं नोबडी नोस एक वक्त आता है ये प्यूपा फट जाता है और एक खूबसूरत रंगों वाली तितली बाहर निकल आती है और उड़ती है और वसी दुनिया देखती है दैट इज द पिक्चर ऑफ क्रिश्चियंस इन द वर्ल्ड बटरफ्लाई की तरह पहली स्टेज यीशु की जिंदगी रूह कुस की कुदरत से हमारे अंदर आती आसमानी जिंदगी सुपर नेचुरल लाइफ कई इत्थे ही बंद कर देंदे ने नो ये रोज बरोज नई होती जाती है इट बिकम्स कैटरपिलर लार्वा प्यूपा अंदर खूबसूरत जीसस लाइफ रंगों से भरी हुई जलाली जिंदगी बाहर प्यूपा बाहर कुछ नहीं दैट इज वाई आज दुनिया मसीहों को नहीं जानती यूहन्ना रसूल कहता है दुनिया नहीं जानती कि हम कौन हैं क्योंकि उन्होंने यीशु को भी नहीं जाना था मगर हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं और ये कहलाते हैं इसलिए कि हम हैं हम क्या कुछ होंगे अभी तक इसका इल्म नहीं लेकिन इतना जानते हैं दैट वी नो कि जब यीशु जाहिर होगा तो हम उसकी मानंद होंगे खूबसूरत तितलियां रंगों से भरी हुई यीशु की जिंदगी से भरपूर आज दुनिया हमें नहीं जानती आई सल्यूट क्रिश्चियंस जो न्यूबॉर्न हैं जो सेंट्स हैं नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं उनके अंदर एक जिंदगी पंप रही है और खुदावंद सब चीजों को नया बना रहा है और एक दिन आने वाला है जब ये जिस्म खत्म हो जाएगा और हम कब्रों में से जी उठेंगे और हम यीशु मसीह की मानत होंगे और हमारे रहने के लिए एक नया आसमान एक नई जमीन एक नया यरूशलेम एक नया शहर एक नया घर होगा जोरदार तालियां खुदावंद के काम के लिए आई वॉन्ट टू टेल यू 6-7 बातें जो आप इस साल में
अपना रेजोल्यूशन बना सकते हैं। नंबर 1, in the year 2017 ये कहते रहिए every day, Lord, I want to be changed. मैं नया बनता जाना चाहता हूं। Renew me, change me, make me a heavenly butterfly. आसमानी तितली, उसमें रंग भर। मैं पिछले सालों में दूसरों को चेंज करता रहा। This year I want to be changed. मैं बदलना चाहता हूं खुद। ये पहला काम। इस साल ये दुआ कीजिए, लॉर्ड चेंज मी, स्टार्ट विद मी, मुझे चेंज कर। दूसरी बात, और ये खुदावंद ने मेरे दिल में डाली डे बिफोर यस्टरडे, और इसको सुन लीजिए। ये रोमियो 12वां बाब उसकी पहली आयत। मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से, और यहां भी लफ्ज कायनोस, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी सोच क्वालिटेटिव न्यू हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। इससे क्या होगा? खुदा की नेक, पसंदीदा, कामिल मर्जी तुम्हारे तजर्बे में आती रहेगी। दूसरा पॉइंट इस साल के लिए, मेरी बॉडी, ये खुदावंद के लिए आई डेडिकेट इट, माई बॉडी। इससे मैं जो कुछ करता हूं, ये खुदा की मेज पर उसकी नजर कुर्बानी के तौर पर, आई गिव माई बॉडी टू जीसस। ये किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट। हथाना रोटी भी खानी है। इस बॉडी को डोंट डिस्ट्रॉय विद फूड, डोंट डिस्ट्रॉय योर बॉडी विद जंक फूड। ये बॉडी कीमती है और कोई बॉडी तेरे पास नहीं। जब ये खत्म हो गई, यू आर गॉन। तेरा बदन जरूरी, इसको सेहतमंद रख, इसको ठीक रख, मजबूत रख, इसको खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर। टेक केयर ऑफ इट। मैं अपनी आंखों से क्या देखता हूं? हाउ डू आई यूज माई बॉडी? ओ जड़ा माउस कंप्यूटर दा है, ये बॉडी कहां क्लिक होता है, किस पोस्ट, कौन सी चीज डाउनलोड, कौन सी वेबसाइट। हाउ डू यू यूज योर बॉडी, योर हैंड्स, योर आईज? बदन का इस्तेमाल तुझे बना भी सकता है और तुझे बिगाड़ भी सकता है। हाउ डू यू यूज योर बॉडी? Where do you go with your legs? How do you use your hands, your heart, your nose? तेरी बॉडी किस काम के लिए है? Romans chapter 12 verse 1। तेरी बॉडी
खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए है। उसने तुझे अपने खून से खरीद रखा है। अगर तेरी बॉडी आज बर्बाद हो चुकी है मंशियात में, ड्रग्स में, मुझे याद आ गया कितना अफसोस हुआ हमें। ये कहां था एल्डर साहब? टोबा टेक सिंह। व्हाट अ ट्रेजेडी। रोंदे क्रिसमस मनाउण नूं कितने 39 45 ये अपनी बॉडी में क्या डाल रहे थे? पॉइजन, शराब, नशे, सिगरेट नोशी, दूसरी चीजें। ये तेरी बॉडी को जो खुदावंद के पाक रूह का मक़दस है इसको बर्बाद कर रही हैं। स्टॉप इट और अपनी बॉडी खुदावंद को दे दे और वो इसको नया बनाता रहेगा, इसको खूबसूरत करेगा। तीसरी बात, डोंट लिव इन द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट एंड नाउ। माजी में जिंदा ना रहिए, माजी जी बैठे रहो। सन 2017 ते तुसी बैठे 1999। अरे उस वक्त क्या हुआ था? फलाने बंदे ने मुझे सट लाई थी। अरे उसको तो 17 साल हो गए, तू अभी तक वही है। फॉरगेट इट, लीव इट, ड्रॉप इट। तो हाल में चल नहीं सकेगा। माजी के बोझ, कड़वाहट, तलखी, अनफॉरगिवनेस, कईयां ने अंदरों चीज़ां डिलीट ही नहीं कीतियां, है ना? ते ओ दसदे ने जी तुहाडे इन्ने MB सन, वो सारे ही फुल ते नवा मटीरियल हुण नहीं आ सकता, पहले कुछ फाइलां कड्डो। राइट? अरे तेरी तो MB भर गई हुई है। फाइलें डिलीट। 1999 की, 2000 की, 2005 की, डिलीट इट। पलूस रसूल फिलिपियों 3 बाब 13-14 आयत। ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं, ओनली वन थिंग आई डू, कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर, हालेलुया, आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। 2 आदमियों को यह टास्क दिया गया कि भाई तुमने फलां जगह पर पहुंचना है, तुम्हारे रास्ते में जितनी चीजें तुम्हें मिलें तुमने इकट्ठी करनी है और सबको लेकर वहां पर पहुंच जाना है। दोनों ने इत्थे एक कपड़ा पा लिया जिवें सलूका जिहा नहीं हुंदा, एक आगे बहुत बड़ी जेब पॉकेट, एक पीछे। एक आदमी कहता जी श्योर, ओनू जेड़ी शै भैड़ी जी लभनी उन्हें फट इत्थे पा लेनी, जेड़ी चंगी शै उन्हें पिछे पा लेनी। ते चंगियां भैड़ियां चीज़ां, स्टिंकिंग बैड ईवल थिंग्स उसने फ्रंट पॉकेट में डाल रहा है, और वो इतनी बदबू आ रही थी कि वो चल ना सका और बैठ गया और मंजिल पर ना पहुंच सका। नेवर रीच्ड। दूसरा आदमी जितनी बुरी चीजें पीछे डालता रहा, अच्छी चीजें, खुशबू वाली चीजें, नाइस थिंग्स
फ्रंट पे रखता रहा और भागता रहा और मंजिल पर पहुंच गया। यह सीक्रेट है जिंदगी का। तलख तजर्बे, मायूसियां, किसी ने ठोकर पहुंचाई, किसी ने तुझे बिट्रे किया, तुझे नुकसान पहुंचाया, लड़ पड़ा, शिकायत की, बात कुछ किया, माफ कर दीजिए। थ्रो इट बैक साइड, बैक साइड, डोंट पुट इट एट द फ्रंट। छड़ना नहीं मैं भी इहनूं, जदों मैनू वक्त मिलिया करांगा मैं इहदे नाल गल। You will not be able to walk. माजी की चीजें छोड़ दे। आज नया साल है ते आओ नवीं गल्लां करिए। पुरानी चीजें भूल जाओ, नई चीजें लेकर आओ। डिलीट कर दो कुछ चीजें। करोगे? कईयां नूं कंप्यूटर ते डिलीट करना आउंदा है, हैं? इत्थे डिलीट करना नहीं आउंदा, चूहा ही नहीं लभदा माउस। ते रूल कुछ कहता है हाथ मारा है गई डिलीट इट। तेरा अंदर कड़वा हो जाएगा, तेरी शख्सियत जहरीली हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। डोंट डू इट। आज नए साल पर 2017 से पहले तमाम नाकिस माल, नाकिस मटीरियल डिलीट इट। फॉरगिव एंड फिनिश इट। तुसी वेखना हौले हो जाओगे। चौथा रेजोल्यूशन, ये तहैया कीजिए कि मैं 2017 में बाइबल मुकद्दस पैदाइश से मुकाशफे तक तरतीब वार कम से कम एक दफा पढ़ूंगा। कितनी दफा? बड़ा हल्का जा क्या यानी मैं नहीं पढ़नी। कितनी दफा? ते पता किन्ने बाप बनते ने डेली? 3, 3.25, 3.5। बस हर ओवर च 3 ते 4 स्कोर। ठीक है? डेली रीड द वर्ड ऑफ गॉड। क्या होगा इससे? तेरे अंदर खुदा का कलाम, इल्हाम, जिंदगी, कलाम का बीज, आसमानी बातें, नबियों के साथ रिफाकत, बादशाहों के साथ, रसूलों के साथ अच्छी संगत, अच्छी रिफाकत। जब तू कलाम पढ़ेगा तेरे अंदर जिंदगी आ जाएगी। 5वीं बात, फाइनेंशियल गोल। रुपया पैसा हुण सारे सुन गए, अब टाइम नहीं। मेक अ बजट इन 2017। तेरी इनकम कितनी? तेरे जॉइंट फैमिली है, प्यो दी किन्नी, पुत्र दी किन्नी, अपनी किन्नी, धी दी किन्नी। राइट इट डाउन। एक्सपेंस कितने? सबसे पहले मंथली लाइबिलिटीज। अगर किराए पर है, किराया इधर चो कटो। बच्चों की फीस, किचन, जरूरी चीजें, गिव देम प्रायोरिटी। इसके बाद विलेज रेस्टोरेंट। ए आखिर ए नहीं कि पिज़्ज़ा हटी। तनखा ही ते एल्डर साहब नाल ही चलो जी, चले छोटू तुम ही तैयार हो, आज प्यो ने तनखा मिली हो। अरे ये सारे महीने के लिए है, एक हफ्ते के लिए नहीं। मेक अ बजट। और क्या कर? जॉन वेस्ली का ख्याल, वो ये कहा करता था, अर्न एज मच एज यू कैन। आ गई समझ? जिन्ना हो सकता है कमाओ, कमाओ जितना कमा सकते हो। नंबर 2, सेव एज मच एज यू कैन।
थोड़ी जे पैसे बचाओ हर महीने, एड़ा मैनू कहना ला पूरी नहीं पैंदी, बचाइए किथों? अगर चाहो तो बचा सकते हो। थर्ड पॉइंट, गिव एज मच एज यू कैन, ये जॉन वेस्ली है। अर्न, सेव, गिव। अगर ज्यादा कामयाब होना चाहते हो, अंदर फाइनेंशियल तसल्ली चाहते हो, तनख्वाह आए पहले फल दयकी निकाल दीजिए। दैट्स नॉट योर्स, इट बिलोंग्स टू गॉड। दे दीजिए। कलाम कहता है, देखो मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं या नहीं। एंड द लास्ट थिंग, इन्ना ही वादा कीता सी। मैं 2017 में पूरा साल कम अज कम 1%, कितने? एक शख्स को यीशु मसीह के लिए जीतूंगा। आमीन। सौदा महंगा है। एक साल में 365 दिन मैं एक शख्स को मसीह के पास लाऊंगा, उसके लिए दुआ करूंगा, उसकी हेल्प करूंगा, उसके लिए शिफात, उसको बुलाऊंगा, उसको मिलूंगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मेहनत करूंगा, उस पर वर्क करूंगा, उसके लिए रास्ता बनाऊंगा। I will touch one person's life for Jesus। ये 2017 के रेजोल्यूशंस हैं। इत्तेफाक करते हैं? कितने जरा हाथ उठाए? वेह लेना, मतलब फरवरी जी भुले हो वो, ए लेह लेना जाके। तो क्या होगा? 1/1/2018 में एल्डर साहब यहां पर कितनी तादाद होगी? हैं? एक ग्राउंड छोटा, एक बंदा, चर्च विल बी डबल। हुण वेखो किन्ने बैठे ने उत्थे धुप्पे, सानू मुसीबत पा दियो इंतजाम लई, की करिए? इतने लोग लेकिन निजात पाए हुए। सिर्फ भीड़ नहीं, क्वालिटी पीपल, नॉट ओनली क्वांटिटी, क्वालिटी। एक शख्स को मैं मसीह के लिए जीतूंगा। जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने कहा, देख मैं सब चीजों को क्या कर देता हूं? नया बना देता हूं। उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। आओ हम झुकें और दुआ करें।